everyone. So we are on the verge of completion of the chapter. We have almost completed the major important topics from this chapter, and now we will start with color of the complex. Now if we see, majority of the colors of D block elements are colored compounds, right? And also the complexes, the coordination complexes with this metals are also colored. So they show a bright color. Now why do we see this color? If we see here any metal, okay, in any complex form, if it is there and if it has certain electronic configuration, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये split होता है, ठीक है, it will split into T2G and EG. What is T2G and EG? You will understand from the lecture of crystal field splitting energy. तो ये जब split होता है, अब ये क्या करता है, जैसे ही उस पर white light गिरती है, it will absorb that white light and electron will undergo d-d transition. इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, d-d ट्रांजिशन होता है, एक d से दूसरे d की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है. अब वो जंप करता है तो वो वाइट लाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा वाइट लाइट उसने एब्जॉर्ब किया, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने ऊपर जाने में लगा दी, बाकी की जो एनर्जी है जो अनयूज्ड है वो वापस दे दी. So the color which is coming back, ठीक है, the color which is reflected back is the color which is seen. तो ये color जो है that is what our eyes sees, ठीक है. So let's see example. If you see all these example where the elements are in which state, स्कैंडियम +3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D0 हो गया. टिटानियम in its +4 is D0, copper in its +1 is D10. So from this what do we understand? If there are no unpaired electrons, अगर unpaired electrons नहीं है तो compound क्या रहेगा, colorless. But if there is a presence of at least one unpaired electron, this unpaired electron will do d-d transition and it will show some color to the compound. So सबसे पहले क्या चाहिए, if there is D0 or D10 configuration, it will be a colorless complex. And if the configuration is from D1 to D9, where we at least have one unpaired electron, then the compound will be colored. So what are the factors which are affecting or determining the color of the complexes? First is type of ligand. ligand कैसा है, strong filled है या weak filled है, उसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है. अब ये कैसे हो गया, समझो मेरे पास यहाँ पे ligand फ्लोरीन था और मैंने चेंज कर दिया उसको टू साइनाइड. नाउ फ्लोरीन इज़ अ वीक फील्ड लाइगेंड और साइनाइड हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. तो स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड फील्ड इंक्रीजेस. अभी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है या कम होता है, स्प्लिटिंग इज़ हाई. सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड अभी मेरा लाइगेंड चेंज हो गया तो स्प्लिटिंग बढ़ गया, करेक्ट. सो नाउ द स्प्लिटिंग हैज़ इंक्रीज. नाउ दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू गो टू हायर स्टेट. अब उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी दूर जाने में, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना वो कम रिलीज़ करेगा. समझो आई गिव यू 500 रुपीज़ एंड यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे. अब बॉम्बे टू पुणे ट्रैवल करने के लिए, ये मेरा अगर बॉम्बे है और ये पुणे है, ये ट्रैवल करने के लिए तुम्हें कितना हो जाएगा, 500 में से तो 400 यूज़ हो ही जाएंगे, बचे कितने, सिर्फ तुम वापस कितने दोगे घर पे, 100 रुपीज़ दोगे ना घर पे वापस. येस, बट इफ द distance is very less, if I ask you from Bombay just go to Lonavala, अब वो तो बाजू में हो गया. so in that case you have to just spend 200 rupees. घर पे तुम लाओगे कितना, 300 rupees. so when the splitting is high from weak field to strong field, electron has to travel to higher distance, तो absorbed energy increases, emitted energy decreases. तो मेरा emitted energy क्या हो गया, कम हो गया. Now if the emitted energy कम है, energy of emitted light is less, ठीक है, then wavelength will be high. जिसकी energy ज़्यादा उसका wavelength कम, because E is equal to hc by lambda. Energy and wavelength are inversely proportional. तो energy ज़्यादा तो wavelength कम हो जाएगा. अब जितना wavelength कम मतलब कौन सी साइड, वायलेट साइड, बिकॉज इतना ज़्यादा वेवलेंथ कलर कौन सी तरफ होगा, येस इट विल बी टूवर्ड्स रेड,
क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। तो मैं क्या बोलूँगी, कलर इज रेड शिफ्ट, वो कौन सी तरफ गया, रेड की तरफ। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड चेंज होता है फ्लोरीन से साइनाइड, कलर रेड की तरफ शिफ्ट हुआ। वी आर नॉट सेइंग कॉम्प्लेक्स विल बी रेड, इट कैन बी ऑरेंज, इट कैन बी येलो, बट इट विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स दैट साइड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। समझो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, नाउ इट इज Fe+2 की जगह Fe+3 हो गया। नाउ एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब लाइगेंड और ज़्यादा फास्ट खींचेंगे, अगेन स्प्लिटिंग बढ़ गया। सो स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज होता है मतलब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इंक्रीजेस मतलब ट्रांसमिटेड एनर्जी डिक्रीजेस, ट्रांसमिटेड एनर्जी डिक्रीजेस। और जब ट्रांसमिटेड एनर्जी डिक्रीजेस मतलब वेवलेंथ इंक्रीजेस, अगेन दिस विल बी रेड शिफ्ट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लाइगेंड्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइगेंड्स। तो अगर नंबर ऑफ लाइगेंड्स समझो 6 थे पहले, अभी अभी जब हमने कुछ चेंजेस किए तो लाइगेंड 4 हो गए। सो नाउ नंबर ऑफ लाइगेंड डिक्रीजेस, तो धक्का कम लग रहा है। 6 जन ज़्यादा मारे गए, 4 जन, 6 जन ना, तो 4 जन मतलब कम लाइगेंड मार रहे हैं। तो CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डिक्रीजेस, ट्रांसमिटेड एनर्जी इंक्रीजेस। अब ट्रांसमिट एनर्जी ज़्यादा मतलब वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम मतलब कलर विल बी ब्लू शिफ्ट, वो वॉयलेट की तरह शिफ्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ देखना कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज बिटवीन D1 to D9 इट्स अ कलर्ड, एंड D0 and D10 विल बी कलरलेस कंपाउंड। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।